सर एक्चुअली इसमें मैं फादर और सन का किरदार निभा रहा हूँ। क्या बात है, एक बार जब जोरदार ताली चाहिए। आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। जी तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या वेल था? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे ही, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड कि एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले द फादर्स रोल एज वेल एज द सन्स रोल। तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए। आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है। बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था। है बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का। वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा, एंड आई वाज रियली क्रॉसिंग माय फिंगर्स दैट करण अलाउड मी टू प्ले दिस कैरेक्टर। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा संजय सर के कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है शुद्ध सिंह। ये ऐसा कैरेक्टर है फिल्म में जो एक सिंपल विलन नहीं है, ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको इससे डर भी लगेगा, इस पे नाराज़गी भी होगी, इस पे हंसी भी आएगी। तो ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज विलन्स व्हिच विल ऑलमोस्ट मेक यू फील ऑलमोस्ट ऑल इमोशंस दैट यू वांट टू फील इन एन इंडियन फिल्म। दैट इज हाउ यूनिक शुद्ध सिंह's कैरेक्टर इज इन दिस फिल्म. He is outstandingly, fantastically evil, and he celebrates it. That is what it is. क्या बात है, वानी। And as far as Vaani is concerned, when we were writing the script, the term the seductress temptress always came into our mind. And Vaani को मैं उसकी पहली फिल्म में भी मैंने बहुत पसंद किया था ना. I really wanted to work with her, and I was fortunate that mic बंद हो गया. And thank you. I was fortunate that she became a part of Shamshera. She is not only the most sought after dancer in the film, in the northern part of India, but she also eventually becomes the biggest strength for Ranbir's character as you see the film and as it progresses, and becomes his backbone. क्या बात है। One question for you. Firstly, welcome. It's so good to see you after 4 years on the screen. I was watching one of your interviews where you said even if you play a superhero, you will be an underdog. Over here also, you start as an underdog and then go into the larger-than-life space. Could you tell us about that transformation to get into this space by starting as an underdog? Well, it was very hard for me. Karan is someone who really held my hand through it. I think one thing which I really lack as an actor is angst. I'm not an angry person. I'm a very fun-loving, happy, detached guy. So I think Karan really struggled with angst. We sat a lot together. He's saying, मैं तेरे अंदर से गुस्सा कैसे निकालो? He started like roughing me up. He started like going deeper into my personal life, about my past, because he really wanted to really, tap into that side of me. But like I said, it's all in the paper. It's all where when you start interacting with the director, you guys created, excuse me, excuse me, excuse me. You guys created together. No, it was a cough. But thank you. I'll take the blessings. Excuse me. So yeah, so it's partnership. I've always partnered with the director, and I got a great partner, a great creative partner in Karan. It was a very hard role. Trust me, there were many days on set when I used to sit and I was like, I can't do this. Apart from the physical stress, even the mental stress of playing this part, about this high octane. The emotions were up there. It's nothing which is real. It's really out there. Expressing yourself. And there were many days, and I'm like talking to God. I was like, please look at me. I'm working very hard, and somewhere in life, please, give it back, give something back. If I went through those days, but I'm glad I did, because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. क्या सिमिलैरिटी तो कुछ नहीं है. इट्स दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. केजीएफ ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा कम बोलने वाला आदमी है. Shuddh Singh is more fun. He's amazing. All I can say is that he's just fun. He's dangerous. He's conniving. लेकिन सेट प्रॉब्लम पे हुआ था. प्रॉब्लम सेट पे हुआ था जब रणबीर को मुझे चाबुक मारना पड़ा. वो अच्छा नहीं लगा. फिर क्लाइमैक्स में मैंने इसको मारा, वो भी अच्छा नहीं लगा. और वानी को थप्पड़ अगर मार देता तो शायद यहाँ बैठी नहीं होती. But I can't compare both the films. I mean, it's totally different. क्या बात है।
Alia has seen the teaser. She is in London right now, so she's sleeping. So I guess once she wakes up, she'll see the trailer. And I already answered the question, about Sanju sir. Is that my journey from idolizing him to playing him to actually for us being nemesis has really been amazing. Kind of a different character you have played currently after a very long. And was some kind of exercise or some kind of a role play you require to go to this character, to fit in this character? Hanji, of course, every character comes with its own challenges, its own homework. You have to research it, you have to interact with the director, you have to work with him. तो बहुत हमने प्रेप किया इस फिल्म को लेकर, बहुत एक्शन प्रेप था. We got fantastic crew from all over the world. Even our local crews. We put in like 30 days of rehearsal work before each sequence. जैसे आपने एक झलक देखी है, एक ट्रेन का सीक्वेंस है, वो एक्चुअली करण मल्होत्रा ने एक वन शॉट जैसा डिज़ाइन किया था, तो वो बहुत मज़ेदार था. इवन टू लाइक रिहर्स इट एंड परफॉर्म इट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉर टू योर रिएक्शन टू दैट. चलिए आइए. Okay. So we shot Shamshera for over 140 days, and I think it deserved every bit and every hour and every second of it. But I have to say one thing कि हमारा जो crew था, जो हमारे HODs थे, जो HODs के assistants थे, उनके बिना इसका एक पीस नहीं हो सकता था. Believe me, क्योंकि उसको सोचना और उसको एग्जीक्यूट करके पर्दे पे लाना, दोनों में एक इतनी बड़ी और इतनी हेक्टिक और हार्ड जर्नी होती है जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. तो इट वाज 140 days ऑफ फन, मैडनेस, स्क्रीमिंग, येलिंग, ब्रेकडाउन्स, ऑल ऑफ इट टुगेदर, व्हिच हैज कल्मिनेटेड इनटू दिस 3-minute ट्रेलर राइट नाउ. वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप डकैत बनना चाहते हैं या बन सकते हैं? डकैत मतलब चोरी करता हूँ. नहीं, लूटना. हाँ. लूटता हूँ. लूट सकते हैं आप. मैं सोच के बताता हूँ, अभी कुछ है ही नहीं. ओए होए, हमारा दिल तो लूट वो सब छोड़ दिया मैंने अभी. भाई ह्यूमन हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया जीवन में. वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए रणबीर के लिए, और इनके पार्टनर को बधाई देनी चाहिए. इतना जल्दी चेंजेस कैसे आ जाए. बता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, I think I myself got bored with my comfort zone and the things that I was doing. I think after 15 years in the industry and as an actor, you have to keep challenging yourself, pushing the boundaries. And to be honest, no director really saw me in films like this. I'm really grateful that Karan Malhotra offered me a role like Shamshera, because I was not getting offered films like this. They usually see me as a coming of age or a romantic cad or something of that kind. So I jumped onto this offer because I knew that this film has the potential to speak to a larger audience, to speak to an audience who loves going to the cinemas and loves that movie experience. So yeah, ये फिल्में जैसे आप देख रहे हैं, बिग बजट VFX हैवी फिल्में हैं, so they have taken its time. कोविड भी आ गया था, तो आई डोंट नो इफ इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग और अ फॉर्चुनेट थिंग कि मेरी दोनों फिल्म आई थिंक 45 डे के स्पैन में आ रही है. बट आई थिंक फिल्में को लेके अलग मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है. मेरी शादी हुई है इस साल, वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ रही है मेरे लाइफ में. मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इज़ दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई. लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाव, हक्का नूडल होना चाहिए. बट बॉस, ज़िंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है. एंड मैंने लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है. सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर इन माय लाइफ. सर, फिल्म में 6 गाने हैं. आजकल नॉर्मली होते नहीं, लेकिन हमारी फिल्म में 6 गाने हैं. वो आप गानों की डिटेल तब जानेंगे जब सुनेंगे, जब म्यूजिक रिलीज होगा. लेकिन एज फार एज द बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट जाता है मिथुन को, जिसने इस फिल्म के गाने भी किए हैं और बैकग्राउंड स्कोर भी किया है. हमने कुछ 7 से 7.5 महीने लिए थे इसका बैकग्राउंड करने. नॉर्मली एक एवरेज फिल्म को 2-2.5 महीने लगते हैं. एंड it was a very intense process. It was a fantastic process because we were collaborating on a visual that needed much more than an ordinary film would need. तो उसके लिए I think एक right partner होना बहुत ज़रूरी था, जो मिथुन था. दूसरी बात ये है कि because film के visuals larger than life हैं, background score larger than life होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको support करे. And मेरा ये मानना है कि
हम जो पुराने ज़माने में या हम आगे जाके आज हम जब गणपति के विसर्जन पे जाते हैं, जब ढोल सुनते हैं, हम जब लाइव इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया था. एंड आई थिंक शमशेरा फॉर मी वाज द राइट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट बैक एंड री इन्वेंट इट फॉर अ फिल्म दैट विल रिलीज इन टुडेज टाइम्स. सो दैट एक्सपीरियंस वाज ब्रिलियंट. बाबा इतना एक्साइटमेंट है, सब लोग शमशेरा का जब से टीजर देखा है सिर्फ एक ही बात जहन में है, ये शुद्ध ही क्या करने वाला है, क्या होने वाला है. क्योंकि करण के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं अग्निपथ में, उसमें विलन अलग किरदार था, लेकिन इस बार बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा रणवीर है. तो क्या है इस विलन में खास बात जो देखने को मिलेगा इस तमाम लोगों को? अभी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि करण अजीब विलन्स क्रिएट करता है. ओके. और उसे क्या शौक है मुझ में कि कमाल के विलन देता रहता है. शुद्ध सिंह जी एक बहुत क्लेवर, कनाइविंग और डेंजरस आदमी है. मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बाकी आप देखिए, आप एंजॉय कीजिए शुद्ध सिंह जी को और शमशेरा को एंड द ब्यूटीफुल वानी एंड ऑफ कोर्स करण. इसको धूल मिट्टी बहुत पसंद है. मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा है अभी तक. सुबह सुबह एक्चुअली मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे इन्फिनिटी मॉल पहले लेकर गया, जहाँ बेसमेंट में हम ढूंढ रहे थे, कोई था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया. फिर जब इन्फिनिटी मॉल से बाहर आए तो किसी ने मेरी गाड़ी भी ठोक दी, ग्लास टूट गया. तो करण बोल रहा है कि एक अच्छी बात है, शुभ है, शुभ है, बहुत शुभ है. तो आई होप ये ठीक ठाक जाए. बट to answer your question, sir, this man standing next to me has been my first idol, my first hero. I had a poster of him in my क्या cupboard. बात है. Then I got to know him. He's been a family friend. Then I got to act as him. I got to portray his life, and finally I got to fight with him. For him to be my nemesis. The journey has just been unbelievable because he treats me like a son. He treats me like a friend. He treats me like a brother. He calls me. He shouts at me if I'm not doing anything good. If I'm doing bad films. I remember जब मैं बर्फी और रॉकस्टार कर रहा था, I used to work out in his gym. So every day he used to come down and says, यार तू तो 2 साल से मेरे जिम में आ रहा है, तेरी बॉडी कहाँ है? Then he used to keep saying कि तू अब बर्फी कर रहा है, what is your next film? पेड़ा, लड्डू, तू क्या क्या फिल्में करेगा? So he used to keep instilling me that you should do more larger than life films, and you should do films which entertain a larger audience. And I really hope that Shamshera is a positive step towards that, and I really hope that everybody out here likes the trailer. क्या बात है. तो चलिए जी, 22 जुलाई को देखिएगा आप शमशेरा.